Hello friends. So now we'll study our next lecture of Indian independence in 1947. So in the last lecture we have studied about the cabinet mission, the recommendations, and what happens after cabinet mission. So elections, as we have already studied, that elections have happened on the Constituent Assembly, in which Muslim League won 73 seats, Congress has won 208 seats, and rest other parties have won the rest of the seats. And but Muslim League has not joined the Constituent Assembly, while Congress has formed the interim government and in August 1946. So this is what we have studied in the last lecture. Now, before moving forward to the formation of Constituent Assembly, so I will take a separate lecture on it. But today I will take a lecture on the nature of the Indian independence. So what is the nature of India independence, which India has got in 1947? इंडिया को जो 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी उसकी नेचर क्या थी, तो उसको हम इस तरीके से समझते हैं कि बिफोर 1947, फ्रॉम 1947 till 1950, obviously January, and then from Jan 1950 onwards. ठीक है. So before 1957, India is a British colony. India is a British colony. India is a British colony. From 1947 till 1950, India is a British dominion. ठीक है, British dominion होगी India. And India is a sovereign democratic republic. So this is the difference. So as you know, as you see, you have seen that the actual independence India has got in 1950 in January 26 January 1950, because when India has become a sovereign democratic republic. So we will study about the what do you mean by the sovereign democratic republic in another of the lecture. But what is republic? Republic is the head of the state is directly or indirectly elected by the people. So it is the people who actually elects the हेड ऑफ द स्टेट. तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट हो गए थे, तो प्रेसिडेंट को इंडियन पीपल विल चूज. डोमिनियन में क्या है? द हेड ऑफ द स्टेट टू बी चूजन बाय ब्रिटिश क्राउन और टू बी अपॉइंटेड, यू कैन से अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन. ठीक है. हेड ऑफ द स्टेट कौन थे इसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड माउंटबेटन थे टिल 1948, फ्रॉम अगस्त 1947 टिल जनवरी 1950. ठीक है. ही इज द हेड ऑफ द स्टेट टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन. सो इंडिया इज अ डोमिनियन देयर एंड डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटेन or England, you can say. So this is the difference. As you can see, this is the major difference. You should understand the difference between a colony. You already know that the India is governed by the British Crown directly under it. So the British Crown is the head of the state, plus British Crown is actually responsible for the governance of India. Here head of the state is Governor General, who is appointed by the British Crown, but the governance, the responsibility of governance is by the Indians themselves. So India खुद ही अपनी गवर्नेंस करेगा, यानी कि इट इज कॉल्ड द सेल्फ रूल जिसकी बात की थी ना, होम रूल मूवमेंट की बात की थी ना एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक ने. So this is the self-rule, autonomous. So dominion is a autonomous community, autonomous country. So dominion, India become a dominion means India become autonomous country within the British, within the Britain, within the which comes under the England, but which actually owes allegiance to the crown. So it owes. India owes allegiance to the crown. That means कि head of the state has to be appointed by the crown, and the cabinet or the dominion cabinet will take recommendation, or you can say take approval
फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट. सो वट एवर डिसीजन इफ इट्स वांट्स टू सेंड इट्स आर्मी, अगर अपनी आर्मी भेजनी है, कहाँ पर भेजनी है, जैसे मान लीजिए वो मसले सुलझाने थे, इन्होंने अपनी आर्मी जूनागढ़ भेजी, हैदराबाद भेजी, कश्मीर भेजी, तो विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द नेहरू जी एंड हिज कैबिनेट कैन नॉट सेंड इट्स आर्मी टू the respective place. So without his permission, nothing can be done. So he is the Sarve Sarva means he is the head of the state. And here the head of the state is actually permission उनकी भी चाहिए, but head of the state is appointed by the people themselves. यहाँ पे क्राउन अपॉइंट करेगा. एक तो दिस इज दी मेन थिंग. और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज डोमिनियन. इंडिया जो डोमिनियन था, इसमें क्या था, the leaders, the unelected leaders take oath in the name of the crown. ठीक है, ये क्राउन के नाम पे ओथ लेते हैं अनइलेक्टेड लीडर्स, यानी कि गवर्नेंस, अभी जो गवर्नेंस होती है हमारे देश में, so here the unelected leaders take oath in the name of प्रेसिडेंट, है ना. प्रेसिडेंट करता है ना तो सारे काम, ये होता है ना, आपने पढ़ा होगा, आज के ऑर्डर्स पे लिखा होता है द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अनाउंस दैट, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डायरेक्ट दैट द DA हैज बीन इंक्रीज बाय so and so %. तो प्रेसिडेंट इज द मेन. सो विदाउट प्रेसिडेंट सिग्नेचर, और यू कैन से विदाउट प्रेसिडेंट स्टैम्प, no order can be released by the government. So president is actually responsible. तो president ने delegation किया, this is called subordinate delegation. So president has actually delegated its authority to the people, to the bureaucrats or to the leaders who are unelected. Here the crown is responsible for all the decisions to be taken in the governance. So crown is actually responsible for all the governance and crown ही delegate करेगा, कोई भी authority करेगा, तो यहाँ पे president करता है delegate. So this is one of the another difference. And the third कि जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ठीक है, आर्म फोर्सेस. तो आर्मी मेन तो आर्मी था, आर्म फोर्सेस हेड जो होगा वो ब्रिटिश जनरल होगा. ब्रिटिश जनरल कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस डोमिनियन में. यहाँ पे तो इंडियन हो गया था, ठीक है. अनदर डिफरेंस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस कंटिन्यू, ब्रिटिश क्राउन कैन कंटिन्यू टू अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन द डोमिनियन एंड दी व्हेन इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी यही अपॉइंट कर सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली अपॉइंट कर सकता है, उसकी अथॉरिटी है. उसके अलावा जो आर्म फोर्सेस का जो हेड होगा दैट इज ब्रिटिश जनरल होगा, इंडियन नहीं होगा. और यू कैन से अपॉइंट करेगा ब्रिटिश क्राउन, डायरेक्टली अपॉइंट करेगा, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, है ना. इंडिया बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक after January 26, 1950, on or after January 1950, है ना. But still India is a member of Commonwealth of Nations. इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस दैट मीन्स कि कॉमनवेल्थ में बेसिकली वो लोग हैं, वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन ने कभी ना कभी राज किया था, जो ब्रिटिश कॉलोनी रही हैं, तो उनको कॉमनवेल्थ का पार्ट बना दिया और इंडिया ने एक्सेंट कर दिया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसकी परमिशन दे दी थी, अप्रूव कर दिया था कि इंडिया कैन बिकम ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन. ये बिकम मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इन 1949. तो इसका कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है ऐसी कॉमनवेल्थ की. सो हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ इज द ब्रिटिश क्राउन. तो एक जस्ट एक टाइटुलर हेड है, एक टाइटल है, ब्रिटिश क्राउन को मिल गया कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड रहेगा, बट कोई पॉलिटिकल, कोई एसच, कोई मिलिट्री पावर एसच कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की नहीं है. तो बस एक कॉमनवेल्थ का पार्ट है इंडिया, दैट्स इट. अब आपको ये भी मालूम होगा कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो क्या है, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, they are constitutional monarchy because they still consider the queen as their head of the state. हमारा तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, बट उनके हेड ऑफ द स्टेट स्टिल क्वीन है, क्वीन को मानते हैं अभी भी वो हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट के पास वहाँ पे ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जरूर है, मतलब संविधानिक रूप से तो कार्य करते हैं, बट ये स्टिल मोनार्की है। मोनार्की मीन्स दे कंसिडर head of the state as the queen, but India doesn't consider queen as their head of the state, but still India is a member of Commonwealth of Nations, so that is just a title or head. Queen is the head of the state of the Commonwealth of Nations, but head of the Commonwealth of Nations, but India is a member of Commonwealth of Nations, but India doesn't consider queen as its head of the state, but these countries are also part of Commonwealth of Nations, but they consider queen as their head of the state. So head of the state के पास वहाँ पे authority है क्वीन के पास इन कंट्रीज से रिलेटेड कुछ पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो कि इंडिया जब 1947 में आज़ाद हो गया था, तो वो 1950 में जब रिपब्लिक बन गया था, तो जो क्राउन की जो अथॉरिटी है या हेड ऑफ द स्टेट की जो अथॉरिटी है, जो कि वो थे उस टाइम तो किंग जॉर्ज द फिफ्थ जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, so he continued to become to remain as the king of the India also, क्योंकि इंडिया उस टाइम क्या था, इंडिया इज अ मोनार्की स्टिल। डोमिनियन को क्या बोलते हैं, सो इंडिया स्टिल इज अ मोनार्की। अभी भी इंडिया सेल्फ रूल जरूर आ गया था, बट इंडिया स्टिल कम्स अंडर द रूल ऑफ द मोनार्की के अंडर में आता था, रूल नहीं था उनका, बट कम्स अंडर द मोनार्की और द ब्रिटिश क्राउन। सो ये कंट्रीज अभी भी क्वीन को हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं, बट हम नहीं मानते हैं। हम कॉमनवेल्थ का फिर भी पार्ट हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट हम इसको नहीं मानते हैं, ब्रिटिश क्राउन को या फिर क्वीन को हम नहीं मानते हैं। तो आप समझ गए 1947 से पहले इंडिया कॉलोनी थी, डायरेक्ट रूल था क्राउन का। 1947 से 50 में इंडिया डोमिनियन हो गया था, यानी कि ऑटोनोमस कंट्री थी इंडिया, सेल्फ रूल था इंडिया में, but still India owes allegiance to the crown, Indian leaders owe allegiance to the crown, and the head of the state is still appointed by the British crown. Head of the state appoint करते थे, डायरेक्टली हेड ऑफ द स्टेट वो नहीं होते थे, बट अपॉइंट ब्रिटिश क्राउन करता था। तो इंडिया इस तरीके से एक मोनार्की आप नहीं कह सकते, बट इंडिया स्टिल एक डोमिनियन था, बट कुछ ना कुछ मोनार्की के भी कंट्रोल में इंडिया था। बट 1950 onwards there is no power of the British over the Indian subcontinent. सारी पावर, सारे एलिगेंसेस, सारे यू कैन से जैसे हमने आर्म फोर्सेस का बताया था या कुछ भी बताया था, तो सारे जो उस टाइप के पॉलिटिकल पावर, किसी भी टाइप की पावर इंडिया के संदर्भ में ब्रिटिश क्राउन की ख़त्म कर दी गई आफ्टर जनवरी 26, 1950. सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन how Indian status before 1947, from 1947 to January 26, 1950 and January 26, 1950 onwards. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एक लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर को प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।